Hello friends, welcome to all of you in the Mongnade biology classes. Myself Gunong Mongnade. Friends, in the last class we had discussed about the structure of plastids and mitochondria. And today we had discussed about the another cell organelles in the eukaryotic cell is ribosome. Friends, आपको पता है मैंने आपको पहले ही बोला था कि राइबोसोम जो है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है कौन राइबोसोम्स. Okay, ribosome is present in prokaryotic cell as well as eukaryotic cell, but it is different in size and shape. Okay, and these are non-membranous cell organelles. Okay, ribosome found in the prokaryotic cell is somewhat smaller in size and it is non-membranous, means it made up of two subunits, that is 30s plus 50s is equal to called as 70s type of ribosome in prokaryotic cell. And in eukaryotic cell ribosome is again made up of two subunits, that is 40s and 60s is equal to 80s. So this is the difference between the ribosome of prokaryotic cell and eukaryotic cell. In both cases, they are helped in the protein synthesis, so called as protein factory of cell. Okay, and they are available in the granular form. Ribosomes are available in the granular form in the cytoplasm, and they are made up of two components. Ribosome जो है दो components से बने होते हैं. One is ribonucleic acids plus protein. हर एक राइबोसोम में क्या रहता है, दो कंपोनेंट रहते हैं. वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर इज प्रोटीन्स. ओके, इसलिए मैं आपको बोला था कि जो राइबोसोम है कहाँ है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में है, वो 70s टाइप के है. यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s टाइप का राइबोसोम है. और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो 80s टाइप का राइबोसोम है. ये याद रखो, ठीक है. और राइबोसोम का डिस्कवरी किसने किया है, ऑब्जर्वेशन किसने किया है, फर्स्ट ऑब्जर्व राइबोसोम बाय जॉर्ज पैलेडे. साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेडे, इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द राइबोसोम इन द सेल फर्स्ट एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम रहते हैं. Okay, so George Palade discovered the ribosome in 1953. Okay, and they are helping in the protein synthesis. Okay, ribosomes are of two types, जिसके अंदर दो सबयूनिट रहते हैं, जिसको सबयूनिट बोलते हैं, smaller subunit, larger subunit. Okay, two subunits are there and joined together to form 80s type or 70s type of ribosome in different kind of cell. In prokaryotic and eukaryotic cell, two types of ribosome formed. Okay. Another thing is ribosomes are made up of ribonucleic acids and proteins. They are not surrounded by any membranes. Okay, and here S stand for Savartberg's unit. Okay, what is the meaning of S? S stand for Savartberg's unit. Okay, Savartberg's unit बोलते हैं उसको. Savartberg's unit या उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. ओके, सावर्टबर्ग्स यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जिसमें हम उस राइबोसोम की डेंसिटी और साइज फाइंड आउट करते हैं. ओके, दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स एंड रिमेंबर राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन द सेल. सेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है जो राइबोसोम बोलते हैं, उसको हम जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है ना. और smallest cell organelles in the cell, and it is also called as cell organelles within cell organelles. Ribosome is also called as cell organelles within cell organelles. मतलब ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर रहता है. जैसे मैंने आपको बोला था ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स विदिन सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं किसको, राइबोसोम को. ओके, और ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक में रहता है.
and ribosomes are found in types of cell. Okay, mostly ribosomes are found in all eukaryotic cell except some cell like RBC. RBC जो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल, उसमें राइबोसोम नहीं रहता. ओके, बाकी के पूरे यूkaryotic सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है. ओके, and they are found in the cytoplasm as well as some cell organelles. Okay, and they are attached on the surface of endoplasmic reticulum. Magnesium ion are essential for binding of two subunit of ribosome. Very important point जो मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में भी बताया था. मैग्नीशियम आयन यूजफुल फॉर द जॉइनिंग ऑफ टू सबयूनिट ऑफ द राइबोसोम्स. जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, तो उसके अंदर एमआरएनए इंट्रोड्यूस होता है. किसके अंदर? दो सबयूनिट के अंदर एमआरएनए इंट्रोड्यूस होता है, और तब दोनों सबयूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन क्या करता है? हेल्प करता है. किसमें? राइबोसोम में. राइबोसोम द सबयूनिट्स एंड दे आर डिफरेंट इन प्रोकैरियोटिक यूकेरियोट्स. याद रखो 70th टाइप ऑफ राइबोसोम में 70th टाइप ऑफ राइबोसोम जो है, इसमें 60% आरएनए है और 40% प्रोटीन है. क्या है? 60% आरएनए है और 40% क्या है? प्रोटीन है ना. किसमें बोल रहा हूँ? 70th टाइप ऑफ राइबोसोम बोल रहा हूँ. और 80th टाइप ऑफ राइबोसोम जो है, जो यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आपको मिलता है, इसमें 40% इसमें क्या होता है? 40% आरएनए है, 40% आरएनए है. इसमें यूकेरियोटिक सेल में बोल रहा हूँ 40% आरएनए है और 60% क्या है? प्रोटीन है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, इसलिए इसको बोलते हैं. राइबोसोम के अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड भी है, आरएनए जैसा, प्रोटीन भी है. ओके, सो दे आर डिफरेंट इन द डिफरेंट सेल्स. एंड 30th सबयूनिट इज मेड अप ऑफ, जो 30th सबयूनिट है उसके अंदर 23 इयर्स एंड 5 इयर्स रहता है. 23 इयर्स एंड 5 इयर्स ऐसे दो सबयूनिट रहते हैं. कहाँ पे? 30th के अंदर 30th सबयूनिट जो है वो दो सबयूनिट बना है, और जो 50th है उसके अंदर 16 इयर्स टाइप का सबयूनिट रहता है. इसका मतलब ये क्या है? टू सबयूनिट के अंदर के कंपोनेंट्स है. ओके, उसी तरह अगर आप 80th टाइप ऑफ राइबोसोम में देखना चाहते हो, 40th सबयूनिट जो है ऊपर वाला, उसके अंदर 20 इयर्स, 28 इयर्स, 5.8 इयर्स एंड 5 इयर्स है ना. कहाँ पे? 40th के अंदर क्या क्या है? ये 40th सबयूनिट जो है, 40th सबयूनिट जो है, दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 28 इयर्स, 5.8 इयर्स, 28 इयर्स, 5.8 इयर्स. ओके, 5.8 इयर्स. यस, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है सेवरबर्ग यूनिट है, जिसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं. और तीसरा है 5 इयर्स. 5 इयर्स ऐसे 3 पार्ट से बना है. कौन? 40th टाइप ऑफ राइबोसोम का सबयूनिट. ओके, और जो 60th है उसमें 60th में क्या रहता है? 18 इयर्स टाइप का राइबोसोम का पार्ट है, उसको हम 18 इयर्स बोलते हैं. सो दिस इज अबाउट द राइबोसोमल पार्ट्स. ओके, नोन एज पॉलीराइबोसोम. अभी कभी क्या होता है कुछ सेल में क्या होता है? राइबोसोम जो है एमआरएनए के ऊपर लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं ना. मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन द सिंगल एमआरएनए इज कॉल्ड एज पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, जो प्रोटीन की सिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं ना. सेल के अंदर वाले बात बोल रहा हूँ, सेल के अंदर जो राइबोसोम्स है एमआरएनए के ऊपर ज़्यादा अटैच होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं. पॉली मींस मेनी राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं. सो दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स. क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. राइबो मींस राइबोस, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन, ये दोनों कंपोनेंट से बनता है. ओके, मैंने आपको यस का तो मीनिंग बता दिया ऑलरेडी. अभी 80th टाइप और 70th टाइप के राइबोसोम में फर्क क्या है देखो. 80th टाइप ऑफ राइबोसोम जो है, आपको मैंने पहले बोला है, वो यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में रहता है. ओके, प्रोटीन सिंथेसिस करता है. और 70th टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में है और यूकेरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स में है. बस ये पहला डिफरेंस हो गया.
सेकंड डिफरेंस मैं बताया जा रहा हूं आपको, जब आप इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल, कौन सा एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम जो है, एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, और 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में है और यूकेरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी है, ठीक है ना। तीसरा डिफरेंस, दे आर 80s टाइप ऑफ राइबोसोम फॉर लार्जर इन साइज, ये तो सबको पता है। ओके, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है उसका साइज बड़ा होगा, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम का साइज छोटा होगा, ये तो सबको पता है। ओके, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है जो इसका 80 है, इसका 70 है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसका 80 है, इसका 70, इसको इसलिए इसको 80s और इसको 70s कहा गया है। और लास्ट डिफरेंस जो है, जो सब दो सब यूनिट बनते हैं, इसमें 80s में वो 40s प्लस 60s है और इसमें 30s प्लस 50s है। बस इतना हो गया राइबोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो आपकी यूकेरियोटिक सेल में आता है, दैट इज साइटोस्केलेटन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेल इज साइटोस्केलेटन। ओके, वैसे लिटरली मीनिंग आप देखते हो, साइटो मींस सेल एंड स्केलेटन मींस फ्रेमवर्क। सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करने वाला एक फ्रेमवर्क बनता है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनता है, जो फाइबर से बनता है, प्रोटीन से बनता है, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोस्केलेटन। याद रखिए, ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर रहता है और दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन मतलब क्या है? सेल के अंदर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है, ओके, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बनता है, सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन आर जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। साइटोस्केलेटन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ सेल। मोटिलिटी मतलब हलचल करने के लिए, मेंटेन द शेप ऑफ सेल, सेल का शेप मेंटेन करने के लिए, सेल की मोटिलिटी मतलब मूवमेंट के लिए, ये पूरी एक्टिविटी करने के लिए साइटोस्केलेटन का इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, दिस इज द सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोस्केलेटन एक पार्ट है और दे आर आल्सो कॉल्ड एज फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इन द सेल, एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली माइन्यूट है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फाइबर आपको दिखते हैं, एंड फॉर्म अ फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट एज वेल एज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सेल के मूवमेंट के लिए, सेल में कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स, ओके, हेल्प करता है कौन? साइटोस्केलेटन। ओके, सो दिस इज अबाउट द साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। साइटोस्केलेटन के अंदर 3 कंपोनेंट रहते हैं। कौन कौन से? एक है माइक्रोफिलामेंट्स, नंबर 1 इज माइक्रोफिलामेंट्स, ओके, याद रखिए, जिसके अंदर एक्टिन नाम का प्रोटीन रहता है। एक्टिन नाम का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है, उसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। ये दूसरा जो कंपोनेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट है सेकंड। एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन इज, ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स। थर्ड कंपोनेंट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, याद रखिए। सो दिस इज 3 कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। मैंने आपको पहले बोला है कि ये प्रोटीन से बना हुआ है, मोटिलिटी करता है सेल की, सपोर्ट करता है सेल को, सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है। ये सभी साइटोस्केलेटन का मैंने आपको ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है। आप देखते हैं हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। पहला पार्ट देखते हैं माइक्रोफिलामेंट क्या है। वैसे तो लिटरली नाम में ही मीनिंग है, माइक्रो में छोटे, स्मॉल, एंड फिलामेंट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिव प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट में क्या रहता है? रॉड लाइक प्रोटीन रहता है, थिन प्रोटीन रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है, उसको हम एक्टिन बोलते हैं। ओके, एंड यूकेरियोटिक सेल में और प्लांट सेल में ये आपको मिलता है। कौन? माइक्रोफिलामेंट्स यू आर फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल एज वेल एज प्लांट सेल। ओके, एक हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट मींस इन बिटवीन, दोनों के अंदर का है, सपोर्टिव एलिमेंट है। ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर मिलता है, एक्सेप्ट द प्लांट सेल। प्लांट सेल में कुछ आरबीसी जो है उसमें नहीं मिलता, और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ,
ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है यूकेरियोटिक सेल में मिलता है, ओके। एनिमल में आरबीसी में नहीं मिलता और प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपको नहीं मिलेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड एज केराटिन। Intermediate filament consists of protein called as keratin as well as desmin as well as vimentin, vimentins, okay। vimentin बोलते हैं उसको, VIMEN, vimentin बोलते हैं, ओके। तीन कंपोनेंट से बनता है केराटिन, डेस्मिन एंड विमेंटिन। ये तीन टाइप की क्या है कंपोनेंट्स है उसके अंदर, ओके। प्रोटीन है कहाँ पे, इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर तीन टाइप के प्रोटीन मिलते हैं आपको, एंड each intermediate filaments are made up of 8 protofilaments। intermediate filament में each intermediate filament जो है उसके अंदर 5 क्या रहते हैं प्रोटोफिलामेंट्स है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट जो है साइटोस्केलेटन का वो है कौन सा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटे, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्स, ओके। दे आर अनब्रांच्ड hollow and microscopic structure made up of tubulin। आपने सुना होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ओके। हर एक के अंदर प्रोटीन है, देखो यहाँ पे एक्टिन था, यहाँ पे केराटिन था, डेस्मिन था, और यहाँ पे कौन सा है प्रोटीन, ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। एंड ऑल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ 13 हेलिकली अरेंज्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रैंड्स कॉल्ड एज, ओके, प्रोटोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल में हेलिकली कॉइल्ड 13 प्रोटोफिलामेंट रहते हैं, ओके। एंड prototubules made up of alternate spirals of the two structures, that is alpha tubulin and beta tubulins। helically coiled स्टैंड है ना, उसमें दो टाइप के प्रोटीन रहते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन नाम के, एंड दे कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोमल फाइबर्स। कहाँ रहते हैं ये, स्पिंडल फाइबर के अंदर रहते हैं जो क्रोमोसोम का सेपरेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम का सेपरेशन करते हैं, उसी के साथ क्रोमोसोम फाइबर है, सेंट्रियोल है, वो सभी के अंदर प्रेजेंट रहता है। बेसल बॉडीज है फ्लैजेला के अंदर, बेसल बॉडी फ्लैजेला के अंदर सीलिया में रहता है, स्पर्म के टेल में रहता है। ये कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द स्पर्म टेल, ओके। एंड nervous cell also supporting elements of protozoans। तो दिस इज अबाउट द राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। अगला सेल ऑर्गेनेल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ cilia and flagella। another cell organelles of the cell is, तीसरा जो पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ आज, that is cilia and flagella। आपको पता होगा cilia जो है वो स्मॉल रहते हैं, ओके, और मिनी रहते हैं, और flagella जो है वो लार्ज रहता है और फ्यू रहते हैं या सिंगल रहता है। cilia स्मॉल है, मिनी है, फ्लैजेला फ्यू है, लार्ज है। ये दोनों में डिफरेंस है ना। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ फॉर्म्ड ऑन द सेल सरफेस। सेल मेम्ब्रेन से जो हेयर लाइक आउटग्रोथ बाहर आती है उसको बोलते हैं सिलिया या फिर फ्लैजेला बोलते हैं। सेल के अंदर रहते हैं ये, और सेल का जो मूवमेंट है उसके लिए हेल्प करते हैं ना, मेम्ब्रेन से बाहर आते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिलिया। सिलिया क्या है आपको पता है, सिलिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी रहते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ह्यूमन के बॉडी में भी है, एनिमल की बॉडी में भी है। सो सिलिया आपको पता होगा पैरामोसिम के ऊपर भी है, सरफेस जो है पैरामोसिम का वहाँ पे भी है। स्मॉल स्ट्रक्चर which work like oars। छोटा सा स्ट्रक्चर है जो ओर जैसा काम करता है, ओके। the work as a oars and cause movement in the cell of surrounding fluids, ओके। ओर जैसा काम करता है और वो सेल को मूवमेंट करने के लिए करता है। सपोज आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पैरामोसियम आपने सुना होगा। ये पैरामोसियम नाम का ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपको पता है ये बाहर जो है ये न्यूक्लियस है ऐसे, और जो बाहर है ये जो हेयर्स फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं सिलिया पैरामोसियम में, और जिसकी वजह से सेल की क्या होती है, मूवमेंट होती है, फ्लूइड मीडियम में मूवमेंट होती है। और फ्लैजेला को आपने देखा होगा, फ्लैजेला जो प्रोकैरियोटिक सेल में दिखता है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको दिखता है फ्लैजेला, ओके। वो भी सेल का मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, मगर फ्लैजेला जो है उसी से रिलेटेड यहाँ पे बेसल बॉडी रहते हैं, यहाँ पे हुक रहता है। सो दिस इज अबाउट द फ्लैजेला। दोनों का क्या है, मूवमेंट करने के लिए। फ्लैजेला लार्ज कंपैरेटिवली, सिलिया से बड़ा रहता है कौन, फ्लैजेला, एंड रिस्पांसिबल फॉर द सेल मूवमेंट एंड
flagella of prokaryotic cells and eukaryotic cells already they are structurally different. प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला और यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, दोनों में थोड़ा सा चेंज है। इसमें फ्लैजेला में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के ओके सीलियम एंड फ्लैजेला आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो तो सीलिया के और फ्लैजेला के ऊपर क्या रहता है बेटा, कवर रहता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। क्योंकि जो भी सेल ऑर्गेनेल है सेल के अंदर उसके कवर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड देयर कोर इज axonic, has many microtubules running parallel to the log axis। ओके डायग्रामेटिकली देख सकते हो आप, ये है शीथ, इसको बोलते हैं शीथ। ओके और साइड में क्या है, ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो डुप्लेट फॉर्म में रहते हैं। कौन से फॉर्म में रहता है, डुप्लेट मींस डबल फॉर्म में रहता है। कितने हैं ये, 9 पेयर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 7 8 and 9 ऐसे क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना। ओके 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये जो पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स है अंदर से ये शीथ को कनेक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोक। क्या बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं ना, अंदर से कनेक्शन होता है इसका। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो कवर है इसका बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके कहाँ पे, सीलिया के और फ्लैजेला के बाहर जो कवर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ओके तो इसका जो कनेक्शन है जनरली ये ऐसा अरेंजमेंट जो रहता है इसका ए बी रहता है बेटा। अरेंजमेंट कैसा रहता है, ए बी ऐसा रहता है। ओके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है वो है ए बी और जो इसका अंदर का पार्ट उसको बोलते हैं शीथ। और सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल रहते हैं ना, सेंटर भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। ओके दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट को बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं, सीलियम एंड फ्लैजेलम आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स and their core means central part is called axoneme and many microtubules are running parallel to the long axis। long axis क्या होता है, ये parallel run होते हैं ऐसे। ओके and axoneme has 9 pairs of doublet and radially arranged the periphery। देखो 9 पेयर है ना, क्या 9 pairs of what, doublets। 9 pairs of डबलेट्स। व्हाट इज डबलेट्स, 2 से बना है ना, 2 प्रोटीन से बना है, इसलिए 9 पेयर ऑफ डबलेट बोलते हैं। रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, 9 पेयर्स है। ओके और एंड पेयर इन सेंट्रल। ओके 1 पेयर कहाँ है, सेंटर में है। एंड पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड दिस कॉल्ड एज 9+2 एरे। इसलिए क्या कहते हैं इसको, 9+2 एरे कहते हैं, याद रखो। क्योंकि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, 9 है और सेंटर का कितना है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल है जो दूसरे को कनेक्टेड है। ओके और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय, सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और आपको पता होगा इस कनेक्शन को बोलते हैं ब्रिज। ओके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बना है उसको बोलते हैं ब्रिज बोलते हैं। कनेक्टेड बाय ब्रिज आर इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। मैंने बोला आपको ऑलरेडी, ये जो ब्रिज है और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है दोनों को कवर करने वाला कौन है, शीथ है। शीथ मतलब कवच है एक टाइप का, उसको हम सेंट्रल शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ, सेंट्रल मतलब सेंटर को कवर करने वाला शीथ है, कवच है। ओके एंड कनेक्टेड टू वन अनदर बाय ट्यूब्यूल कॉल्ड एज पेरिफेरल डबलेट्स। देखो सेंट्रल शीथ का और पेरिफेरल डबलेट का क्या है, कनेक्शन है। ओके इसको बोलते हैं हम लोग स्पोक। आगे बारे में कर रहा हूँ, सेंट्रल शीथ का और पेरिफेरल डबलेट जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो दोनों का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं। पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो पेरिफेरल डबलेट जो है, पेरिफेरल डबलेट जो है वो भी एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं ना। कौन, ये पेरिफेरल डबलेट्स। ये देखो ये जो पेरिफेरल डबलेट है वो भी एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं।
और इस पार्ट को बोलते हैं लिंकर्स। पेरिफेरल डबलेट्स कितने हैं? 9 पेयर है ना, तो वो दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं, इधर देखो शीट से माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ने वाला स्पोक है, और दोनों जो माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर है, वो दोनों को जोड़ने वाला पार्ट जो उसको बोलते हैं लिंकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकर्स। एंड सीलियम एंड फ्लैजेला emerge from the centriole like structure called as basal body, very important। ओके, सीलिया हो या फ्लैजेला हो, जो बाहर आता है कहां से? सेल के अंदर से, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से आता है। सीलिया एंड फ्लैजेला इज अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से आता है, और उसको बोलते हैं हम लोग बेसल बॉडी, या तो और एक बोल रहा हूं। ओके, सीलिया हो या फ्लैजेला हो, वो सेल के अंदर जो सेंट्रियोल है वहां से इमर्ज होता है, बाहर आता है, और उसको बोलते हैं बेसल बॉडी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजेला, और दोनों का काम क्या है? लोकोमोशन करने के लिए या मूवमेंट के लिए सेल के हेल्प करते हैं दोनों। कौन? सीलिया एज वेल एज फ्लैजेला, ठीक है ना। फ्लैजेला थोड़ा लॉन्गर रहता है, सीलिया शॉर्टर रहता है, फ्लैजेला ब्रॉड रहता है, सीलिया स्मॉल रहते हैं। ओके, सो ये फर्क है दोनों में, और मैंने डायग्रामेटिकली तो आपको पूरा पार्ट बता दिया है। और ये जो लिंक है, पेरिफेरल डबलेट का जो लिंक है, इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स कॉल्ड एज ए टू बी लिंकर्स। ए टू बी लिंकर्स मतलब ये सपोज ये बी है, ये है, ये बी है, ये है, ये बी है, ये है, ये बी ए मतलब एक माइक्रोट्यूब्यूल का ए दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के बी को कनेक्ट हो रहा है ना। एक माइक्रोट्यूब्यूल का ए दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के बी को कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं ए टू बी लिंकर्स बोलते हैं। ओके, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है अंदर से, उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। मतलब फ्लैजेला हो, फ्लैजेला कहाँ आता है? फिर प्रोटिस्टा में, मोटाइल आल्गी में, स्पोरोजोआ में, एनिमल में आता है, ब्रायोफाइट में आता है, टेरिडोफाइट में आता है। ओके, कोयानोसाइट्स, स्पॉन्जेस, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, सिलेंड्रेटा में आता है, जूस्पोर में आता है। ओके, कौन? फ्लैजेला थैलोफाइटा में आता है, आल्गी में। और सीलिया जो है, सीलिया आल्सो फाउंड इन द प्रोटिस्टा लाइक what? Paramecium, as well as plain cell of the worms, larval bodies of many animals। ओके, एंड इनवर्टिब्रेट्स है, एपिथेलियम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रीनल ट्यूब्यूल है, किडनी के अंदर रहता है, ओविड डबल पार्ट है, फनेल है। ओके, और स्पोक जो है वो डायनिन से बनता है, याद रखिए। ये जो स्पोक बनता है ना, स्पोक, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पोक बोलते हैं। दैट स्पोक इज मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रोटीन डायनिन से बनते हैं, और स्पोक जो है थिकन वॉल रहते हैं, उसको स्पोक हेड बोलते हैं, सेंट्रल सिप को कनेक्ट करते हैं। एंड पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय टू बी लिंकर्स, पहले बोला आपको मैंने, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेक्सिन, यानी एक्साइन। ये जो लिंकर है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन है बेटा? नेक्सिन। और एक बात बोल रहा हूँ, स्पोक के अंदर जो प्रोटीन है, स्पोक के अंदर जो प्रोटीन है वो था डियानिन, डायनिन प्रोटीन था स्पोक के अंदर, और लिंकर के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है नेक्सिन, नेक्सिन बोलते हैं। और सीलिया एंड फ्लैजेला जो स्लाइडिंग करते हैं, डबलेट फाइब्रिल्स, अगेन दे आर डायनिन आर्म्स मेक द टेम्पररी कनेक्शन। ओके, सब यूनिट एंड एडजेसेंट डबलेट्स कनेक्ट करता है। और याद रखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर द स्लाइडिंग ऑफ मोमेंट के लिए मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और एटीपी है, तीनों की जरूरत होती है। ओके, इसके लिए सीलिया और फ्लैजेला के मूवमेंट के लिए। तो ये पार्ट हो गया। ओके, और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ओके, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल is one of the important cell organelles found in cell. Now centrosome and centriole. Okay, so what is the difference between the centrosome and centriole is centrosome is the outermost covering and centriole is nothing but the perpendicular structure of microtubules are formed inside the centrosome is called as centriole. Okay, so if you see the diagram of centrosome, actually centrosome is look like this. Centrosome is look like this.
and inside the centrosome there is the two structure is formed, that is called as centriole. And remember, centrioles are generally perpendicular to each other, okay, and they are arranged in the form of microtubular structure, okay. They form the structure like microtubules. So this is the structure of centriole, okay. The inner structure is called as this, and this structure is called as centriole, and this structure is called as centrosome, okay. फंक्शन हम बाद में देखते हैं, पहले हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या है ये देखते हैं, ओके. सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं रहते, और उसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका है हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, एंड स्पिंडल फाइबर हेल्प इन द सेल डिवीजन, पहला फंक्शन. दूसरा फंक्शन ऐसा है कि सेंट्रोसोम की वजह से बेसल बॉडी फॉर्म होती है, और जो सिलिया और फ्लैजेला फॉर्म करता है. सेंट्रियोल की वजह से बेसल बॉडी फॉर्म होती है जो सिलिया में और फ्लैजेला में प्रेजेंट रहते हैं ना. सो सेंट्रोसोम इज द ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग टू नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. सेंट्रोसोम में क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, है ना. सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सेंट्रियोल है, ओके. दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मेम्ब्रेन, ओके. पेरीसेंट्रियोलर मेम्ब्रेन, ये देखो सेंट्रियोल क्या बाहर क्या है, जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, एंड सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के अंदर, ओके, टू ईच अदर, एंड दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibril called tubules, okay. If you see the structure of centriole in detail, अगर सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो सेंट्रियोल में आपको क्या मिलता है, इवनली प्लेस्ड, ओके, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रखे हुए क्या है, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अरेंज हुए वाले अरेंजमेंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल, ओके. और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें सेंटर का जो पार्ट है, आप याद रखो वहां पे मैंने क्या बोला था, सेंट्रल सिप बोला था, और इस पार्ट को बोलते हैं, सेंटर के पार्ट को बोलते हैं हब. सेंटर के पार्ट को क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं. और इस हब से क्या आते हैं, 9 पार्ट क्या आते हैं, स्पोक लाइक स्ट्रक्चर आते हैं ना, कितने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, एंड 9 कहाँ से, हब के अंदर से, ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टोटल 9 क्या होते हैं, ये ऐसे स्पोक आते हैं सेंटर से, और इसके साथ क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं ना. क्या अटैच होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके. तो एक ए बी सी, ओके, ए बी सी ऐसे अरेंजमेंट रहती है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, बाद में और ए बी सी, बाद में ए बी सी, 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 ऐसे होता है ना. तो लिंक किसका रहता है, लिंक रहता है ए टू सी. एक सेंट्रियोल का ए, दूसरे सेंट्रियोल के क्या पसंद है, एक माइक्रोट्यूब्यूल का ये दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल की किससे, सी से अटैच होता है. इसका मतलब इनका जो अटैचमेंट है ए टू सी है ना. कैसा अटैचमेंट बेटा, ए टू सी है. सेंट्रल पार्ट को मैंने आपको पहले बोला है, हब बोलते हैं. हब से जो बाहर ब्रांचेस आते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोक, ओके. हब से जो ब्रांचेस बाहर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं, ओके. क्या बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं, ओके. और डॉटर सेंट्रियोल्स है एबीसी, और ट्रिपलेट फाइब्रिल्स है ये जो तीन का कनेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट फाइब्रिल्स है. ट्रिपलेट फाइब्रिल्स है जिसमें मैंने बोला लिंक कैसे है, ए टू सी लिंक है. एक
ट्रिपलेट फाइब्रिल का ये दूसरे ट्रिपलेट फाइब्रिल के सी को अटैच होता है, ओके। और पेरिफेरल फाइब्रिल है ये, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन। पेरिफेरल मतलब बाहर के जो फाइब्रिल है उसको बोलते हैं ट्यूबुलिन। वो हब से कनेक्ट होता है बाहर स्पोक के द्वारा, ओके। एंड ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल्स आर ट्रिपलेट एंड adjacent triplets are also linked. Adjacent triplets are also linked, मतलब एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट को कनेक्ट होता है ना। adjacent मतलब एक बाजू के एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट को कनेक्ट होता है, लिंक होता है एक दूसरे को, ओके। एंड द central part of the centriole is called central part of the centriole is called as hub. Central part of the centriole called as proteinaceous structure. सेंट्रल पार्ट जो है वो प्रोटीन से बनता है, उसको हम बोलते हैं हब। बाहर का क्या था, बाहर का क्या था, ट्रिपलेट फाइब्रिल जो ट्यूबुलिन से बना था, किससे बना था, ट्यूबुलिन से बना था। और सेंटर का जो पार्ट है वो भी हब बोलते हैं उसको, प्रोटीन का बना है एंड दे आर कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट, ओके। हब का कनेक्शन किसके साथ है, पेरिफेरल ट्रिपलेट के साथ है। और मैंने आपको बोला था जो कनेक्शन दोनों का है उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक बोलते हैं। रेडियल स्पोक इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। रेडियल स्पोक जो है वो भी प्रोटीन से बने हुए हैं। एंड द सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी, ऑलरेडी बोला है मैंने आपको, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, वो बेसल बॉडी फॉर्म करते हैं किसमें, सीलिया में और फ्लैजेला में। सीलिया में फ्लैजेला जहाँ पे अंतर अटैच होता है सेल के, वहाँ पे सेंट्रियोल्स का ओरिजिन होता है बेसल बॉडी। एंड स्पिंडल फाइबर जब सेल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है माइटोसिस मियोसिस में, तब स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रियोल से बनता है, ओके। एंड दैट गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर apparatus during the cell division of animal cell. एनिमल सेल में क्या होता है, आस्ट्रल माइटस होता है, तो वहाँ पे सेंट्रियोल से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनता है और वो सेपरेशन करता है किसको, क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के टाइम में। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिए। एनिमल सेल में, ह्यूमन बीइंग में ओव्यूम जो है, ओव्यूम फीमेल गैमेट, उसके अंदर सेंट्रियोल नहीं है। तो अगर सेंट्रियोल नहीं है तो वो सेल डिवाइड नहीं हो पाता। जिस सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं है वो खुद डिवाइड नहीं हो पाता। इसका मतलब ओव्यूम के अंदर सेंट्रियोल नहीं है, इसलिए ओव्यूम अकेला डिवाइड नहीं हो पाता। तो होता क्या है फिर, जो फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म के अंदर का सेंट्रियोल, जिसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, वो सेंट्रियोल ओव्यूम में जाता है और वो फिर सेल डिवीजन करने के लिए, ज़ायगोट का कन्वर्शन, मोरुला में कन्वर्शन करने के लिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। ओव्यूम के अंदर सेंट्रियोल नहीं है। और आपको ये भी पता होगा न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन्स वो भी डिवाइड नहीं हो पाते आफ्टर बर्थ, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर भी सेंट्रियोल नहीं है। नर्वस सेल विदाउट सेंट्रियोल है, इसका मतलब जिस सेल में सेंट्रियोल नहीं है वो सेल डिवाइड नहीं हो पाएंगे, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा उसका, किसका, जिसमें सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है ना। सो ये आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो। हियर लाइक आउटपुट देखिए, सॉरी, सेंट्रियोल इज नथिंग बट द कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है, इट लुक लाइक कार्टव्हील, मतलब जो बैलगाड़ी रहती है उसका चक्का रहता है ना, उसके वैसे जैसा स्ट्रक्चर रहता है, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। न्यूमनली प्लेस्ड क्या है, ट्यूबुलिन है और परपेंडिकुलर प्रोटीन है, राइट एंगल में अटैच होते हैं। अमार्फस वेरी सेंट्रियोलर मटेरियल भी है बाहर, ओके। मैंने बाकी के पार्ट आपको ऑलरेडी बताया बेटा। और बेसल बॉडी को अटैच करता है, स्पिंडल apparatus फॉर्म करता है। एंड याद रखिए ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन द व्हिच सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है और कुछ प्रोटोजोआ में भी, ओके। प्रोटोजोआ में प्रोटिस्टा लैकिंग, फ्रिजिलियन, फ्लैजेला, जिसमें सीलिया है, फ्लैजेला नहीं है। जैसे कि अमीबा है, सीलिया नहीं है, तो उसमें भी क्या सेंट्रियोल एब्सेंट है। डायटन्स है, रेड एल्गी है, कुछ फंगा है, उसमें भी सेंट्रियोल नहीं है, ओके। ह्यूमन के, एनिमल के सेल में, आरबीसी में भी, आरबीसी के अंदर भी सेंट्रियोल नहीं है, ओके। और पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड डिप्लोसोम। ये जो सेंट्रियोल का जो पेयर रहता है ना, पेयर, उसको बोलते हैं डिप्लोसोम बोलते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज डिप्लोसोम, ओके। एंड सेंट्रियोल is the centrosphere, central and centrosphere collectively called as centrosome. Centriole and centrosphere ये दोनों को बोलते हैं क्या, सेंट्रोसोम बोलते हैं। एंड सेंट्रियोल मेनली 9 पेरिफेरल प्रोटीन है और 0 अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, फिर उधर कैसा था, सीलिया में, फ्लैजेला में 9+2 था और यहाँ पे कैसे 9+0 है, मतलब पेरिफेरल प्रोटीन 3 ट्रिपलेट है ना,
या सॉरी पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, ट्रिप्लेट फाइब्रिल्स है, ट्रिप्लेट फाइब्रिल्स है, वो 9 है, मगर सेंटर में प्रोटीन नहीं है, वो हब है। ओके, उसको हम बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, 9+0 अरेंजमेंट है इसकी किसकी, सेंट्रियोल में। एंड सेंट्रियोल्स आर सेल डुप्लीकेटिंग यूनिट्स। सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल डुप्लीकेट होता है, नॉन मेम्ब्रेनस है, उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, और सेल डुप्लीकेट होता है, खुद डुप्लीकेट होता है। आपको ये भी पता होगा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, यस फेस ऑफ सेल साइकिल, सेल न्यूजन में इंटरफेस रहता है, इंटरफेस, और इंटरफेस में क्या होता है, यस फेस होती है, सिंथेटिक फेस बोलते हैं उसको, और उस सिंथेटिक फेस के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, और फिर बाद में प्रोफेस में वो सेंट्रियोल माइग्रेट होता है किधर, पोल की तरफ, और फिर मेटाफेस में वो ऑरेंज होता है पोल की तरफ, और स्पिंडल फाइबर फॉर्म करके क्रोमोसोम का अटैच होता है। बाद में आनाफेस में वो क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से जो बने हैं वो सेपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये फंक्शन हो गया सेंट्रियोल का या सेंट्रोसोम का। इस तरीके से मैंने आपको आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया। आज के लेक्चर में मैंने आपको 4 सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाए। कौन से? वन इज राइबोसोम, सेकंड इज साइटोस्केलेटन, थर्ड इज cilia and flagella, and fourth is centriole and centrosome. Okay, now next part में हम न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं। Today stop here. Thank you all of you. 1853, George Ballard was observing a cell under an electron microscope when he noticed a few dense particles in the cytoplasm of the cell. Today, we know these particles as ribosomes. These granular and non-membrane bound structures, composed of ribosomal RNA and proteins, are found in both prokaryotic and eukaryotic cells. They synthesize proteins by attaching to a single messenger RNA to form a chain called a polyribosome or polysome, and ultimately translate mRNA into proteins in both eukaryotes and prokaryotes. While eukaryotic ribosomes are 80S and composed of 40S and 60S subunits, prokaryotic ribosomes are 70S and composed of 2 subunits, 30S and 50S. Apart from the cytoplasm, ribosomes also occur on the rough endoplasmic reticulum, in chloroplasts in plants, as well as within the mitochondria. Called the powerhouse of the cell, mitochondria are sites of aerobic respiration and produce cellular energy in the cell membrane, which helps in the transport of substances, is also a part of the cilia and flagella, hair-like structures that project from the cell's surface. These structures emerge from centriole-like structures called basal bodies and share a similar structure, though cilia are smaller than flagella. Their core, called the axoneme, is covered by the cell membrane and has numerous microtubules running parallel to its axis. 2 microtubules join to form a doublet. If we observe a cross-section of the axoneme, we will see 9 pairs of radially arranged peripheral doublets and a pair of centrally located microtubules which are interconnected by a bridge. Such an arrangement of axonemal microtubules is known as the 9+2 array. The central microtubules are enclosed by a central sheath, which is connected to one of the microtubules of each peripheral doublet by a radial spoke. The peripheral doublets too are interconnected by linkers called an interdoublet bridge. The cilia and flagella help the cell propel or move the fluid surrounding the cell. Thus, it helps in motility. Thus, cilia and flagella help cells in motility, while the cell membrane gives shape to the cell, separates the intracellular components from the extracellular matrix,
and also plays an important role in the transport of substances across the cell. Is the cytoskeleton, an elaborate network of filamentous, proteinaceous structures that gives the cell its characteristic shape, aids in intracellular transport, gives mechanical strength to the cell, and also helps in motility in case of motile cells. The cytoplasm also contains numerous single membrane-bound minute vesicles called microbodies, which are filled with enzymes that aid in the synthesis of amino acids. Also embedded in the cytoplasm are several organelles or membrane-bound structures which lead to its extensive compartmentalization. However, the cytoplasm of all eukaryotic cells does not contain the same set of organelles. Plant cells, for instance, have a large central vacuole and plastids, whereas centrosomes are only found in animal cells. The centrosome, surrounded by amorphous pericentriolar material, is made up of two cylindrical structures called centrioles that lie perpendicular to each other. Each centriole is made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein, with each peripheral fibril being a triplet. All adjacent triplets are linked to each other, forming a cartwheel-like structure. The central part of the centriole, called the hub, is proteinaceous and is linked to the tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein. Centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to a spindle-like apparatus during cell division. Eukaryotic cells differ not only in their cytoplasmic organelles but also in their structure.